हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाले वीडियो पे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस बुक इनोवेटर्स रिटन बाय वॉल्टर आइजैक्सन। तो बिफोर वी गो इनटू द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब. Our handles are same in both the places. It's @curiosity_corner10. So let's first talk about the author, and then we are going to do the review of this book. I'll talk about the summary of this book, and then I'll also share my best experience, the best part which I got to know from this book. So let's talk about the author Walter Isaacson. He's an American author, journalist and historian. He is known for his biographical works on influential figures as well as his books on science, tech and history. Now, he was basically born on 20th May 1952 in New Orleans, Louisiana. So he graduated from university. So he is a Harvard University graduate with a degree in history and literature. So now throughout his career he has held various editorial and writing positions, and that's why he was able to write such a fantastic book. He also worked as a journalist from 1996 to 2001, and because during that time he was serving as a magazine's editor. Now his most notable and acclaimed biographies are the Steve Jobs, the book on Steve Jobs, a biography of the co-founder of Apple, then Leonardo da Vinci, and then also on Einstein. So these three are very famous books written by him. So I was reading one of the books like on Steve Jobs, his biography. From there I got to know about this book, and believe me, it was a it was a fantastic experience reading this book. तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं in the next section of this video. But उससे पहले let me tell you one very important thing is this book is not just a tech book. It's for those who are interested to know about the history of the digital revolution. So digital revolution is not just about the digital, not just about software development, it's not just about hardware development, it's about the combination of both. Like कैसे from the year 1700 the first lady programmer Ada Lovelace written the first computer program. What was it to the year 2011 wherein we see the laptops, the chips, the small chips. So how computers were, how the first program was written से लेकर के how laptops and all came into picture से, तो इसका जो पूरा डेवलपमेंट है, उसका पूरा जो साइकिल है, that is what this book talks about. And believe me, there are a lot of innovations which I will tell you which you also don't know. So I was also not aware of that. Okay, these are so small innovations in the history, but these are not so much talked about. We know that Bill Gates is the founder of Microsoft, but hardly anyone knows who was the first person who developed the first graphical user interface. ठीक है, तो these are some very important aspects जिसके बारे में इस book पे लिखा हुआ है. तो I am going to do a very short summary as well as a review of this book in the upcoming section of this video. So let's jump in and first talk about the summary of this book and what is the important and the interesting content inside this. So let's talk about the summary of this book. So it is a non-fiction book which explores the history of the digital revolution and the individuals who played pivotal roles in shaping it. Now this book traces the journey of the innovators and their efforts in the various fields, ultimately leading to the development of the computer and the internet that we have today. अब इस बुक में बहुत सारे इनोवेटर्स का लिखा मेंशन है. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट किसके स्टार्ट हुआ है, किससे एंड हो रहा है, एंड सम ऑफ द वेरी फेमस वंस. एंड इस वाले वीडियो के इस सेक्शन के बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट. तो Isaacson in this book begins by examining the life and the works of Ada Lovelace, who is the first computer programmer. He then moves to discuss the contributions of the other key figures such as Alan Turing, John Newman and John von Neumann and Claude Shannon, who laid the foundations of computer science and the theory of computation. This book also delves into the pioneering works of visionaries like Douglas Engelbart. This is the most interesting part. इसके बारे में अलग सेक्शन में बात करेंगे, but he was the person, he and his team were the first people who developed the GUI and the mouse. ठीक है, moving on, Isaacson then shifts focus to the birth of the internet and the collaborative efforts of individuals and organizations that led to its creation. He has also mentioned a lot about Apple, Microsoft and Google and the entrepreneurial journey of the individuals such as Steve Jobs and Bill Gates. ठीक है,
तो he also highlights the contributions of JCD Licklider, who envisioned a global network of computers, and the groundbreaking work of researchers like Bob Kahn and Vincent Cerf in developing the protocols that form the foundations of the internet. Protocols meaning TLS, SSL, V3 protocols के this I mean it's talking about, ठीक है. So back then it started with a different aspect, now it's different, ठीक है. तो बेसिकली इफ़ मैं बोलूँ कि ओवरऑल में दिस बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन एंगेजिंग अकाउंट ऑफ द की इंडिविजुअल्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दैट शेप द डिजिटल रेवोल्यूशन, शोकेसिंग देयर आइडियाज़, स्ट्रगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. बिकॉज हमें ये नहीं भूलना है दैट द इनोवेटर्स जिन्होंने इनोवेट किया था, हु गेव अस सो मच आई मीन innovations, they did not face any struggles were part of them, and this book particularly lays emphasis on the struggles and how they developed their ideas and what was the transformative impact on the world. So with this, let's jump into the other section of the video, जिस पे we are going to talk about the most interesting part of this book, ठीक है, the development of GUI and the mouse. तो let's jump into it. One of the most unique stories featured in this book revolves around the creation of the GUI and the development of computer mouse. The story focuses basically on Douglas Engelbart and his team at the Stanford Research Institute, where they demonstrated the first graphical user interface using a mouse. Because previously उससे पहले कमांड वी वर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स से कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते थे. और जिन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो उन्हें पता होगा दैट वी यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड इवन द DOS ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. सो Engelbart and his team developed the first GUI which we see right now. It was developed first and then it was progressively it was उसको अच्छा और बेहतर बनाया गया था. लेट्स जंप इनटू द स्टोरी. तो Engelbart, who was an electrical engineer, he had a vision of making computers more interactive and user friendly. He aimed to create a system which would enable users to interact with computers using intuitive graphical elements rather than solely relying on the complex commands and programming language, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. That before Engelbart and his team demonstrated the GUI, we were using MS-DOS, और MS-DOS पे as we all know it doesn't have a UI. You can only interact with the help of commands, ठीक है. तो basically in 1960s, Engelbart and his team embarked on an ambitious project, basically which is the mother of all demos. So that was a project known as mother of all demos. सुनने में खतरनाक लगता है, तो कितना ही खतरनाक डेमोन्स्ट्रेशन होगा. आप सोच लो कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ रनिंग द कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ कमांड्स एंड अ पर्सन कम्स इन एंड हिज टीम कम्स इन एंड दे टेल कि नो, अब आप लोगों को GUI यूज़ करना है. तो भाई खतरनाक ही होगा वो अपने टाइम पे. बढ़ते हैं वीडियो पे आगे. तो ड्यूरिंग द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन 1968 दिसंबर, हाँ 1968 दिसंबर था, Engelbart showcased numerous groundbreaking tech that would shape the future of computing, ठीक है. तो दिस introduced the world to the GUI and the concept of Windows and hypertext linking and the computer mouse that is still in use today. And basically his team's innovation is what is the foundation, वो fundamental building blocks ही, वो एक type का of the computers that we use today, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो द प्रेजेंटेशन वॉज सो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दैट इट शोकेस्ड अ डिफरेंट अप्रोच टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. बिकॉज जैसे मैंने बोला इससे पहले तो वी ऑल वेर यूजिंग उससे पहले जो भी DOS यूज़ होता था उस पर कमांड्स यूज़ हो रहे होते थे, ठीक है. तो GUI with its windows, icons and menus allowed the users to navigate and interact with computers more intuitively. Obviously कमांड तो बेटर ही होता है ना इंटरेक्ट करना. सोचो कि अभी जो सिस्टम है अगर इस पर कमांड्स चल रहे होते हैं, वॉज इट पॉसिबल टू डू वॉट वी आर डूइंग इट राइट नाउ? ऑब्वियसली नहीं होता, राइट. तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये बेस्ट इनोवेशन लगा मुझे इस बुक का. ऑल दो बहुत सारे इनोवेशन है जिसके बारे में अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस पे बात करेंगे. बहुत सारे इनोवेशंस ऐसे हैं इस बुक में जिसके बारे में लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, बट दे आर क्रूशियल, ठीक है. तो बेसिकली Engelbart's vision and his innovations presented during the demo are the ones which laid the foundation for modern computing as we know it today. True भाई, ऑब्वियसली एकदम सच बात है. बिकॉज कि प्राइमरी ये वाला लाइन जो मैंने बुक से लिया है, द रीज़न बीइंग कि इस लाइन, दिस इज़ वेरी हैवी लाइन प्राइमरली बिकॉज हैड द टीम नॉट डेवलप्ड द GUI वी वुड हैव बीन स्टिल वो कमांड से टाइप कर रहे होते. तो कितना बेकार लगता है, सोच लो, गेमिंग ही नहीं होता टोटल. तो आगे बढ़ते हैं. तो Xerox, Apple Macs, जो टेक्नोलॉजीज वे डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द वो मदर ऑफ ऑल डेमोज पे, वहीं से Xerox एंड Apple Macintosh picked up the ideas and expanded it, ठीक है. तो बेसिकली द स्टोरी ऑफ Engelbart and his team's effort to revolutionize
यार मैं यहाँ कन्फ्यूज हो जाता हूँ. स्टोरी ऑफ एंजलबर्ट एंड हिज टीम्स एफर्ट टू रेवोल्यूशनाइज द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का डेमो हुआ था. तो इट इज़ यूनिक, कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ फोरसाइट, innovation and it's a pursuit of making technology more accessible and user friendly. और अभी भी I mean the innovators throughout the world are trying to make the tech more user friendly, more accessible. अब earlier we used to like digital watch, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने पढ़ा है एक बुक पे और मैंने उसके कुछ बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं. तो आप लिविंग असाइड दिस बुक, अभी बुक्स थोड़ा बाहर आते हैं, तो जो डिजिटल वॉच था वो ये आइडिया कैसे आया, कैसे वॉच को डिजिटल करना है, व्हाट इज़ इट इनसाइड इट, तो उसके बारे में भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो आप सोचो कि ये जो आइडिया है, व्हाट वी आर डूइंग इट राइट नाउ टू मेक टेक मोर एक्सेसिबल एंड मोर यूज़र फ्रेंडली इज स्टिल, आई मीन इसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक वॉज लेड इन December 1968 इन द मदर ऑफ ऑल डेमोज का जो डेमो था विच एंजलबर्ट एंड हिज टीम हैड डन. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये जो इनोवेशन है मोस्ट यूनिक लगा मेरे को, प्राइमरली बिकॉज इट चेंज द हिस्ट्री, इट चेंज ह्यूमन, आई मीन द वे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वॉज डन. फाइनली लास्ट पॉइंट, it showcases the power of visionary thinking and collaboration in driving transformative advancements in the field of computing. तो भाई बोल सकते हो कि ये इनोवेशन, आई मीन आई डोंट नो वेदर यू विल अग्री विथ मी और नॉट, तो आप कमेंट करके बताना वेदर यू अग्री विथ मी कि ये इनोवेशन सबसे बेस्ट इनोवेशन लगा आपको इस बुक का, या आप जितने भी इनोवेशन डालते हो उसमें से सबसे बेस्ट लगा कि नहीं, कमेंट करके बताना. और अगर आपको पता हो कोई बेटर इनोवेशन तो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो आप भी ज़रूर उसको कमेंट करो, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट. तो दिस वॉज द मोस्ट यूनिक स्टोरी इन द इनोवेटर्स बुक मेरे अकॉर्डिंग. आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना. तो जंप करते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन ऑफ दिस वीडियो जिस पे हम इस बुक को रेट करने वाले हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ हाउ द कंप्यूटर्स, आई मीन हाउ द रेवोल्यूशन केम इन. इस बुक के आई थिंक फर्स्ट कुछ पेजेस वगैरह पे है इनोवेटर्स, हाँ आई मीन सम पेजेस के बाद इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ. ये देखो, ये वाला जो चार्ट है ना, ये मैं पढ़ के आपको बताऊँगा. From 1843 when Ada Lovelace made the first computer program, तो वहाँ से लेकर के till 2011 wherein we have this ये 3-4 पेजेस का पूरा डेवलपमेंट है in IBM's computer Watson wins Jeopardy. बात करेंगे इसके बारे में अलग से इस वीडियो के अगले वाले सेक्शन पे. तो ये है वीडियो का लास्ट सेक्शन. इस वाले वीडियो पे जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको एक बहुत ही क्रूशल टाइम स्टैम्प, आई मीन वो टाइम का सीरीज़ बताऊंगा जिस पे कि कंप्यूटर्स वे डेवलप. तो इस बुक पे वो मेंशन है, मुझे बताना नहीं चाहिए, इट विल बी अ स्पॉइलर, आई मीन जो बुक्स पढ़ते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज, बिकॉज बहुत सारे इनोवेटर्स ऐसे आने वाले हैं जिस पे हम वीडियोज़ बनाएंगे. और आप कमेंट करके बताना आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा. मुझे तो डॉगलस एंजलबर्ट का माउस एंड द GUI लगा था. माउस से भी ज़्यादा मुझे GUI बेटर लगा, बिकॉज माउस तो कोई ना कोई डेवलप कर देता है. GUI नहीं होता, माउस नहीं आता, GUI वॉज इंपॉर्टेंट. तो दैट्स द रीज़न वाई मुझे वो सबसे बेस्ट लगा. तो टाइम स्टैम्प पे चलते हैं. पहले मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, बिकॉज कंटेंट जो इस बुक का है ना वो भी इन द समरी ऑफ डेवलपमेंट है. सबसे पहले वी हैव लेडी एडा लवलेस, देन वी हैव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, the transistor, the microchip, video games, the internet, the personal computer, software, online, the web, ADA forever. तो बेसिकली ये इज़ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है. तो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लेट्स जंप इन एंड गेट टू नो अबाउट दिस बुक. तो भाई ये स्पॉइलर जाने वाला है, तो इसको ज़्यादा नहीं करते, आप बुक पढ़ो. और जिन्हें बुक नहीं पढ़ना पसंद है वो इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताना कैसा लगा. तो बताता हूँ मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में. तो सबसे पहले 1843 में लेडी एडा लवलेस पब्लिशेस नोट्स ऑन बैबेजेस एनालिटिकल इंजन. देन 1847 जॉर्ज बूल क्रिएट्स अ सिस्टम यूजिंग अलजेब्रा फॉर लॉजिकल रीजनिंग. अलजेब्रा वो एंड और नॉट, लॉजिकल एंड और नॉट गेट्स का बात हो रहा है इधर. देन इन 1847 से 1890 पे आ गए. सेंसस इज टैबुलेटेड विथ हर्मन हॉलर्ट्स पंच कार्ड मशीन. तो पंच कार्ड मशीन केम इन 1890, कितना पुराना है, स्टिल इन यूज टुडे. And then in 1931 we have Bush who divide the differential analyzer, the analog electromechanical computer, as we all know. इसके बारे में सबने पढ़ाई है. 1935 वो 1931 था. 1935 में we have Tommy Flowers Pioneers. Pioneers use of vacuum tubes as on off switches and circuits. तो vacuum tubes came into picture and vacuum tubes ना एक पूरे रूम के बड़ा था. अगर मैं इस रूम का बात करूँ तो शायद इस रूम में भी पूरा ना हटे, बहुत बड़ा vacuum tubes हो रहा होता था. तो vacuum tubes को शॉर्टन किया गया with the help of transistors and all. I mean transistors भी on off परफॉर्म कर सकते थे लॉजिकल सर्किट्स के बेसिस पे. तो 1937 पे एलन ट्यूरिंग केम इन हु पब्लिशेस ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स डिस्क्राइबिंग अ यूनिवर्सल कंप्यूटर. वो ट्यूरिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट.
Then Claude Shannon describes how circuits of switches can perform tasks of Boolean algebra. यहाँ से चालू होता है main development, like कि how circuits can perform logical and or not operations. Then Bell Labs पे, जहाँ पे दुनिया के सारे maximum बड़े बड़े innovations हो चुके हैं, Bell Labs पे Stibitz proposed a calculator using an electronic circuit. तो first use of the calculator, I mean वो electronic circuit का was done in calculator by George Stibitz. I mean I am not sure able to provide the, I mean वो pronounce नहीं कर पा रहा मैं name, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ये सब 1937 पे हो रहा है. जॉर्ज आइकेन अगेन, हार्वर्ड आइकेन अगेन प्रपोजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डिजिटल कंप्यूटर एंड डिस्कवर्स पार्ट्स ऑफ बेबेजेस डिफरेंस इंजन एट हार्वर्ड. ओके, इंटरेस्टिंग है. देन जॉन विंसेंट also puts together concepts for an electronic computer during a long December night drive. This all happened in 1937. 38 पे आते हैं तो बहुत सारे इनोवेशंस होना चालू हो गए थे. दैट वंस पीपल गॉट टू नो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैन ऑल्सो परफॉर्म एंड हाउ दे कैन परफॉर्म लॉजिकल एंड और नॉट, पीपल स्टार्टेड यूजिंग ब्रेवरेंट कि भाई चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए. 1938 विलियम हेवलेट पैकर्ड एंड डेविड पैकर्ड हेवलेट पैकर्ड फॉर्म कंपनी HP इन पालो अल्टो गैराज. ओके, ठीक है. 1938 में HP वॉज फॉर्म्ड. अगेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आई मीन इंटरेस्टिंग, मुझे डेट तो रिमेंबर, आई मीन नोबडी रिमेंबर्स द डेट, बट ठीक है. In 1938, HP was formed. 1939, Tensor finishes model of electronic computer with mechanical storage drums. Interesting. Turing arrives at Bletchley Park to work on breaking German codes. Imitation game. I mean, this is what in 1939 it happened. ठीक है. Concept of CNN machine learning came in from here. 1941, Conrad Hughes completes Z3, a fully functional electromechanical programmable digital computer. Again, crucial. ठीक है. It is happening in 1941. John Macaulay visits Atasov in Iowa, sees computer demonstrated. I mean 1941 पे he saw it. Moving on to 1942. Then Atasov completes partly working computer with 300 vacuum tubes. Leaves for the Navy. 300 vacuum tubes. भाई एक vacuum tube से बहुत बड़ा होता था. Then in 1943, Colossus, a vacuum tube computer to break German codes, is completed at Bletchley Park. Okay, vacuum tube से generate करके तोड़ने वाला, I mean German codes को break करने वाला was done in 1943. Again important है. जिन्होंने इमिटेशन गेम देखा है दे नो हाउ क्रूशियल वाज टू ब्रेक द जर्मन कोड्स एंड ऑल. तो 1944 पे हार्वर्ड मार्क 1 गोज इनटू ऑपरेशन. तो हार्वर्ड्स का मार्क 1 डेवलप होता है. देन जॉन वन न्यूमन गोज टू पेन टू वर्क ऑन इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड एनालॉग कंप्यूटर. आई थिंक यही था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 1945, Von Neumann writes first draft of the report of EDVAC described a stored computer programmer. Okay, the first time I think कुछ memory पे they were storing. 6 women programmers of ENIAC are sent to Edinburgh for training. Okay, in the same year 1945 also Bush publishes As We May Think describing personal computer. अच्छा, PCs का concept 1945 में Bush publish, I mean आया पहले होगा but Bush published it. Whenever Bush published it. Then Bush also publishes Science, the Endless Frontier, proposing government funding of academic and industrial research. Okay. And then ELIAC, electronic numeric wala machine is fully operational. So in the year 1945 it was fully functional. And then in 1947 transistors are invented at Bell Labs, जहाँ से very crucial वो vacuum tubes को replace किया गया था transistor से, which were invented in 1947. Then in 1950 Turing published an article describing a test for AI. Again imitation game से मिलना जुल, I mean if you have seen it, तो वहाँ पे जो machines घूम रहे होते हैं they are very similar to the CNNs if you know, और perceptron और what do you say, CNN convolutional neural networks पे जो होते हैं ना perceptrons का आइडिया वहीं से आया है. In 1952 पे Grace Hopper develops first computer compiler. Okay, Von Neumann completes modern computer at the Institute for Advanced Study. UNIVAC predicts Eisenhower election victory. Okay. तो यहाँ से UNIVAC जो है predict करता है that okay they are going to win elections. तो see अभी मैंने एक पेज कंप्लीट किया है, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, हमें जाना है फिफ्थ पेज पे इट्स गोना कंप्लीट. बट ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे. वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश दिस बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. 1954 Turing commits suicide. Okay, Turing is no more. Texas Instruments or TI introduces silicon transistors and helps launch Regency radio. ठीक है, TI came into picture. I mean ठीक है. Then in 1956 Shockley Semiconductor founded. Transistor के बाद semiconductors were the one which reduced the size of the computers too much more. अब तो भाई हमारे what do you say डिजिटल वॉच पे कंप्यूटर्स आ जाएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं. नैनो बॉट्स पे भी वर्क चल ही रहा है. तो what do you say फर्स्ट AI कॉन्फ्रेंस. अच्छा, फर्स्ट AI कॉन्फ्रेंस हैपन्स इन 1956. इंटरेस्टिंग. 1957 पे रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मोर एंड अदर्स form Fairchild Semiconductors. Okay, I think Fairchild was shut down or it was renamed, पता नहीं.
रशिया लॉन्चेस स्पुतनिक. वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इस बुक में बहुत कुछ ऐसा मिला है मुझे जिस पर बहुत सारे इंडिविजुअल वीडियोस बना सकता हूँ. बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. तो लेट्स जंप इनटू इट, कंटिन्यू करते हैं. तो ये था 1956. 1957 पे वो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होता है. रशिया लॉन्चेस स्पुतनिक इन 1957. 58 पे एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट ARPA इज़ लॉन्च्ड. ठीक है. 59 पे नॉइस एंड फेयरचाइल्ड इंडिपेंडेंटली इन्वेंट माइक्रोचिप. ओके, अब माइक्रोचिप पे बात आ चुका है. देन इन 1960 JCR पब्लिशर्स मैन कंप्यूटर सिम्बायोसिस. पॉल बैरन एट रैंड डिवाइसेस पैकेट स्विचिंग. ओके, पैकेट स्विचिंग इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है 1960 से. आफ्टर माइक्रोचिप्स केम इनटू पिक्चर. 1961 प्रेसिडेंट कैनेडी प्रपोजेस सेंडिंग मैन टू द मून. ओके. 62 MIT हैकर्स क्रिएट स्पेस फॉर गेम. एंड देन डगलस एंजलबर्ट पब्लिशर्स ऑगमेंटिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट. ओके, ऑगमेंटेशन से ही GUI का डेवलपमेंट हुआ था. जो AR VR हम देखते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स वहीं से आया है 1962 डगलस एंजलबर्ट से. 63 इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क इज प्रपोज्ड. एंजलबर्ट एंड बिल इंग्लिश इन्वेंट द माउस. ओके, माउस इज इन्वेंटेड 1963. 64 केस्ली एंड द मैरी प्रैंक्स्टर्स टेक बस ट्रिप अक्रॉस अमेरिका. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. Okay, 65 पे टेड नेल्सन publishes first article about hypertext. Hypertext crucial HTTPS. Moore's law predicts microchips will double in power each year or so. I mean ये लॉ है ना, आई थिंक कि सेमीकंडक्टर्स में भी एक लॉ है दैट एवरी 4th ईयर वो साइज़ रिड्यूस होता है. उस टाइप का कुछ एक लॉ मैं भूल गया हूँ. आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड तो मुझे आइडिया है ऐसा एक लॉ है कि पावर बढ़ता है एंड उनका साइज़ घटता है. कुछ इस टाइप का एक लॉ है. उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं वीडियो पे. छोटे वीडियोस बनाते रहूँगा मैं. अभी तक कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और ये जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है ये कंटिन्यू रहेगा. कमेंट करके बताओ सही लग रहा है, कैसा लग रहा है, व्हाट आर योर थॉट्स. 66 पे स्टीवर्ट ब्रांड होस्ट ट्रिप्स फेस्ट विद केन केस्ली. नॉट इम्पॉर्टेंट. बॉब टेलर कन्विंसेस ARPA चीफ चार्ल्स टू फंड ARPANET. इंपॉर्टेंट है. डोनाल्ड डेविस कॉइन्स द टर्म पैकेट स्विचिंग. वो TLS वगैरह SSL V3 स्विचिंग कैसे होता है, हैंडशेक्स वगैरह. 67 पे ARPANET डिज़ाइंस हैपन. 1968 लैरी रॉबर्ट सेंड्स आउट रिक्वेस्ट फॉर बिट्स टू बिल्ड ARPANETs IMPs. ठीक है. देन ब्रांड पब्लिशर्स होल अर्थ कैटलॉग. एंजलबर्ट स्टेजेस द मदर ऑफ ऑल डेमोज विद द ब्रांड्स हेल्प. खतरनाक. एंजलबर्ट का डेमो आता है 1968 में. 1969 फर्स्ट नोट्स ऑफ ARPANET इंस्टॉल. ARPANET बेसिकली कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में बात हो रहा है. 71 इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली. अच्छा, कॉलम चालू होता है न्यूज़ पे. Demise party for whole earth catalog. Intel 4004 processor, the first processor 4th generation नहीं 4004 series है. Microprocessor is released 1971 पे. 4th generation is different what we have. तो Ray Tomlinson invents email. Email is invented in 1971 by Ray Tomlinson. 72 पे Nolan Bushnell creates Pong at Atari with AI Alcon. ठीक है. अभी भी यार ये पेज बाकी है. I think we are going to end here. 2 मिनट और. इंटरेस्टिंग है भाई, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इनोवेशंस. अगर एक भी वीडियो बनाओ ना, करीब 1000 वीडियोस, 1000 नहीं एटलीस्ट 1000 वीडियोस बनानी पड़ेंगी मुझे, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबका. आई मीन कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे, कवर भी होंगे. तो 1973 जेरोक्स इज इन्वेंटेड. ईथरनेट डेवलप्ड बाय बॉब मेटक्लैफ एट जेरोक्स. कम्युनिटी मेमोरी डिसॉल्व इन 1973. विंसेंट एंड बॉर्ब कैन कंप्लीट TCP/IP प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट इन द ईयर 1973. वेरी क्रूशियल. इंटरनेट ARPANET के बाद दिस TCP/IP प्रोटोकॉल्स का डेवलपमेंट हुआ. 1975 में पॉल एंड बिल राइट बेसिक फॉर अल्टायर फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. तो बेसिक केम इनटू पिक्चर. बिल गेट्स राइट इट फॉर माइक्रोसॉफ्ट. तो स्टोरी ये है दैट बिल गेट्स ऑल्सो टुक दैट जो भी कोड था विच रन्स ऑन द हार्डवेयर फ्रॉम अ प्रोफेसर. तो आई डोंट नो, आई विल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड देन विल डिस्कस ऑन इट. Steve Jobs and Steve Wozniak launched the Apple I. Okay, Apple I is launched in the year 1975. In the same year when Bill and Paul Allen and Bill Gates formed Microsoft. 1977 पे Apple II released. 1978 Bulletin Board System. 1979 Xerox and all. IBM 1980 पे है. PCs का development 1981. Microsoft announces Windows 1983. Richard Stallman develops GNU, a free OS. GNU बेसिकली लिनक्स पे काम होता है. रिचर्ड स्टॉलमैन. 1984 एप्पल इंट्रोड्यूसेस मैकिंटोश फॉर द मैक सिस्टम. 1985 स्टीवर्ट ब्रांड एंड लैरी ब्रिलियंट लॉन्च द वेल. CVC launches Ovel and Larry Page. No, it's Larry Page, Google CEO. 1991 Linus Torvalds released Linux. Linus Torvalds, okay. 1991 Linux आता है. टीम बर्नर्स-ली अनाउंसेस वर्ल्ड वाइड वेब 1991 पे. तो 1990 आने तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था एंड इट वाज जस्ट द फंडामेंटल ब्लॉक्स बनने में काफ़ी टाइम लगा एंड देन पीपल स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम इट. 1993 मैक
मैक ही है, मैक है, PCs है, IBM कम्स इनटू पिक्चर 1995 पे, विकी वेब गोज़ ऑनलाइन, 1995 पे विकी गोज़ ऑनलाइन, 97 पे IBM ब्लू बीट्स गैरी कास्परोव इन चेस, ओके IBM's डीप ब्लू, लैरी पेज एंड सर्जी बिन लॉन्च गूगल 1998, and then Jimmy Wales with Larry Sanger launches Wikipedia. Okay, Wikipedia different है, it's 2001, 2011 finally IBM computer, Watson wins Jeopardy. Jeopardy I think is वो spell bee वाला है, I'm not sure, इस पर भी I have to check it on, but ठीक है. ये chronological order बहुत मस्त है, it's very hard to go through all those, मतलब इतने सारे इनोवेशन से, इतने सारे इंपॉर्टेंट इनोवेशन से इग्नोर तो किसी को भी नहीं कर सकते, बट वी ऑल शुड नो कि आई मीन ईच एंड एवरी थिंग डेवलप्स ऑन टू समथिंग. तो दैट्स इट. आई मीन इस बुक को मैं आउट ऑफ 10 अराउंड 7.5 रेट करूँगा, बिकॉज ये बुक थोड़ा बोरिंग हो जाता है किसी पॉइंट पे, बिकॉज इट्स अ नॉन फिक्शन बुक. फिक्शन नहीं है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बट इफ़ यू आर अ क्यूरियस पर्सन जस्ट लाइक मी, जैसा कि मैंने चैनल का नाम भी रखा क्यूरियोसिटी कॉर्नर पे आप आए हो बिकॉज यू आर अ क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, तो क्यूरियोसिटी को जगाए रखना. मिलेंगे अगले वीडियो पे एंड डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे बुक्स पे, टेक पे, और रिव्यूज़ करते रहेंगे. मूवीज़ को भी रिव्यू करेंगे, साइंस के मूवीज़ को, टेक मूवीज़ को. आई मीन बहुत कुछ करने वाले इस चैनल पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर गेमिंग चैनल कियोस्क प्लेज एंड इन द फुटबॉल चैनल पे. तो सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. कैसा लगा बताओ कमेंट करके. तो इस वाली वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वाली वीडियो पे. दिस इज़ बाय.